آپ کے نصاب میں شامل حمد خدائے عز و جل کے شاعر کون ہیں؟ جواب ہے شبنم کمالی۔ دوسرا سوال ہے شامل نصاب افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتے میں کون تھا؟ جواب بیٹا۔ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-52 میں سمستی پور میں ہوئی۔ قمر جہاں کی پیدائش سن 1951 یا 52 میں ہوئی۔ چوتھا سوال ہے سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ سر سید نے احمد نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ تہذیب الاخلاق رسالہ سر سید احمد نے جاری کیا۔ پانچواں سوال ہے شامل نصاب بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو بھابی جان یہ افسانہ ہے۔ 10ویں جماعت میں بھابی جان افسانہ ہے۔ چھٹا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے نفسیات۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات پر مہارت رکھتے تھے۔ ساتواں سوال ہے زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ پچھلے 100 برسوں میں زمین کا درجہ حرارت 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ آٹھواں سوال ہے درج ذیل میں لطف الرحمان کی کتاب کون سی ہے؟ درج ذیل میں لطف الرحمان کی کتاب نقد نگاہ ہے۔ نقد نگاہ لطف الرحمان کی کتاب ہے۔ اردو کا 9واں سوال ہے اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا ناول میرۃ العروض کو قرار دیا جاتا ہے۔ میرۃ العروض یہ اردو کا پہلا ناول ہے۔ 10واں سوال ہے آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ تریگنا میں قائم کیا۔ تریگنا میں آریہ بھٹ کا تجربہ گاہ ہے۔ 11واں نمبر سوال ہے درج ذیل مصرع کو مکمل کیجئے۔ شاعری بھی نام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعری بھی خالی جگہ ہے آتش مرصع ساز کا۔ خالی جگہ میں جو بھرنے کا لفظ ہوگا نام۔ 12واں نمبر سوال ہے ندا فاضلی کی تصنیف چہرے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ یہ ہے خاکے۔ ندا فاضلی کی تصنیف چہرے خاکے ہیں۔ شامل نصاب ہم نوجوان ہیں کہ شاعر کون ہیں؟ شامل نصاب ہم نوجوان ہیں کہ شاعر ہیں پرویز شاہدی۔ پرویز شاہدی نظم ہم نوجوان ہیں کہ شاعر ہیں۔ 14واں نمبر سوال ہے مثنوی زہر عشق میں کس لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے؟ مثنوی زہر عشق میں سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ ہوا ہے۔ 14واں نمبر سوال کا جواب ہوگا بی سوداگر کی لڑکی۔ 15واں نمبر سوال ہے مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی۔ 16واں نمبر سوال ہے سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے؟ سید محمد جعفری لاہور میں پیدا ہوئے۔ 17 سوال ہے بقاؤلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ جواب بقاؤلی گلزار نسیم کا کردار ہے۔ مصحفی کی 18واں نمبر سوال ہے مصحفی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ مصحفی کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہوئی۔ امروہہ اتر پردیش میں ہے۔ مصحفی کی پیدائش امروہہ اتر پردیش میں ہوئی۔ 19واں نمبر سوال ہے غزل عربی کے کس صنف شاعری سے ماخوذ ہے؟ غزل عربی کے قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ قصیدہ سے غزل ماخوذ ہے۔ 20واں نمبر سوال ہے عرفان صدیقی بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر ہیں؟ عرفان صدیقی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ درج ذیل مصرع کو مکمل کیجئے۔ دولت درد کو دنیا سے رکھنا خالی جگہ کو بھرنا ہے چھپا کر۔ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا۔ 22واں نمبر سوال ہے دوہے کے ہر مصرع میں کیا ہوتا ہے؟ دوہے کے ہر مصرع میں وقفہ ہوتا ہے۔ 23واں نمبر سوال ہے پروین شاگر کے والد کیا تھے؟ پروین شاگر کے والد شاعر تھے۔ 24واں سوال ہے تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی؟ تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرائی۔ شاہ جہاں نے تاج محل تعمیر کرائی۔ حمد 25واں نمبر سوال ہے حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال خدا کے لیے آیا ہے۔ 26واں نمبر سوال ہے سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 میں ہوئی۔ 27واں نمبر سوال ہے افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟
27वां नंबर सवाल का जवाब है महमूद। अफसाना फिरार का मरकजी किरदार महमूद है। 28वां सवाल है कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? कमर जहां का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिला से है। 29वां नंबर सवाल है निगारे अजीम की तसनीफ गिरदयावारगी का ताल्लुक किस सिनफे नसर से है? सफरनामा। सफरनामा। और 30वां नंबर सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस कब मुनक़द हुआ? बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में मुनक़द हुआ। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में मुनक़द हुआ। 31वां सवाल है सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम है। सर सैयद की वालदा अजीजुन्निसा बेगम है। 32वां सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का मजमून अदब की पहचान निसाब में शामिल है। 33वां नंबर सवाल है भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या कहते थे? जवाब भीमा। भीमराव को घर के लोग प्यार से भीमा कहते थे। 34वां नंबर सवाल है लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? लुत्फुर रहमान का मजमून उर्दू ड्रामा नगारी और आगाहस हमारे निसाब में शामिल है। 35वां नंबर सवाल आर्या भट्ट की पैदाइश पटना के किस जिला में हुई? आर्या भट्ट की पैदाइश पटना के खगौल में हुई। आर्या भट्ट की पैदाइश खगौल में हुई। नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के नाविल से है। नज़ीर अहमद नाविल के नाविल निगार हैं। गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई। और 38वां नंबर सवाल है इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? जवाब 7। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। 39वां नंबर सवाल है दरज़ैल में माजी शकिया की मिसाल कौन है? जवाब वह लोग पढ़ते होंगे। माजी शकिया की मिसाल है वह लोग पढ़ते होंगे। 40वां नंबर सवाल ईदगाह क्या है? जवाब इसमें ज़र्फ़। ईदगाह इसमें ज़र्फ़ है। 41वां नंबर सवाल है जिस्म की ज़िद क्या होगी? जवाब रूह। जिस्म की ज़िद रूह है। 42वां नंबर सवाल इबादत की जमा क्या होगी? इबादत की जमा इबादात होगी। इबादात इबादत की जमा है। 33वां नंबर सवाल है अकरम बहादुर है इस जुमला में बहादुर क्या है? सिफत। अकरम बहादुर है इस जुमला में बहादुर सिफत है। और उसके बाद 44वां नंबर सवाल है असदुल्ला खान गालिब में गालिब क्या है? जवाब तखल्लुस। असदुल्ला खान गालिब में गालिब तखल्लुस है। 45वां नंबर सवाल है दरज़ैल में इसमें नगरा की निशानदेही कीजिए। जवाब नदी। इसमें नगरा की मिसाल नदी है। नदी इसमें नगरा है। 46वां नंबर सवाल है दरज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जवाब हज। 46वां नंबर सवाल का जवाब है हज। 37वां नंबर सवाल है अकरम कल पटना आएगा ये ज़माना की कौन सी किस्म है? जवाब ये है मुस्तकबिल। अकरम कल पटना आएगा ये ज़माना मुस्तकबिल की बात है। 48वां नंबर सवाल है अफसाना वातरक के किनारे किसकी तख्लीक है? जवाब पन्ना लाल पटेल। अफसाना वातरक के किनारे पन्ना लाल पटेल की तख्लीक है। 49वां नंबर सवाल है तेलुगु किस सूबा की ज़बान है? जवाब आंध्र प्रदेश। तेलुगु आंध्र प्रदेश की ज़बान है। 50वां नंबर सवाल है वारिस शाह से किस ज़बान की नज़म है? जवाब पंजाबी। वारिस शाह पंजाबी ज़बान की नज़म है। तरादुई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तरादुई खाली संदूक शमशान घाट से लाई थी। तरादुई खाली संदूक शमशान घाट से हासिल की थी। 52वां नंबर सवाल है कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? जवाब दरख्त का। अर्जुन दरख्त का नाम है। तिरपर गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? जवाब फारसी। गालिब ने उर्दू के अलावा फारसी ज़बान में शायरी की। अब्दुल गफूर का तखल्लुस क्या था? जवाब अब्दुल गफूर का तखल्लुस शहबाज था। शहबाज अब्दुल गफूर का तखल्लुस है। 55 मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? जवाब गोरखपुर। मेहदी अफादी गोरखपुर में पैदा हुए। 56वां नंबर सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? जवाब लाहौर। लाहौर में राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए। 57वां नंबर सवाल है दरज़ैल में उर्फ की निशानदेही कीजिए। दरज़ैल में उर्फ गुड्डू है। गुड्डू उर्फ की मिसाल है।
58वां नंबर सवाल, पुख्ता की जिद क्या होगी? खाम। पुख्ता की जिद खाम है। खादिम की जमा क्या होगी? खुद्दाम। खुद्दाम है खादिम की जमा। 60वां नंबर सवाल, दरजैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? जवाब जमीन। दरजैल में जमीन मुअन्नस है। 61वां नंबर सवाल, आसमान से तारे तोड़ना का क्या मतलब है? तो इस आसमान से तारे तोड़ने का मतलब बहुत मुश्किल काम करना है। 62वां नंबर सवाल, दरजैल में लाहिका को तलाश करें। जवाब कुतुब खाना। दरजैल में लाहिका कुतुब खाना है। 63वां नंबर सवाल है, शर्म का मुतरादिफ क्या होगा? शर्म का मुतरादिफ हया। 64वां नंबर सवाल है, लफ्ज सतून का क्या मानी है? जवाब लफ्ज सतून का मानी है खंभा। खंभा को सतून कहते हैं। 65वां नंबर सवाल, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? जवाब कन्नड़। अफसाना सूरज का घोड़ा कन्नड़ जबान की कहानी है। 66वां नंबर सवाल, उर्दू किस जबान से निकली है? जवाब खड़ी बोली। उर्दू खड़ी बोली से निकली है। 67वां नंबर सवाल है, तमिलनाडु में कौन सी जबान बोली जाती है? जवाब तमिल। तमिलनाडु में तमिल जबान बोली जाती है। और 60वां नंबर सवाल है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम क्या है? अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार का नाम मधुकांत है। मधुकांत अंग्रेजिया बाबू के मरकजी किरदार है। 69वां नंबर सवाल है, शामिल निसाब नज़म मुनाजिर फितरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? जवाब मंजरी शायरी। शामिल निसाब मुनाजिर कुदरत चकबस्त के मंजरी शायरी की मिसाल है। 70वां नंबर सवाल है, जगन्नाथ आजाद की पैदाइश कब हुई? 1918 में। जगन्नाथ की पैदाइश 1918 में हुई। उसके बाद है 71वां नंबर सवाल, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? जवाब परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी का असली नाम है सैयद इकराम हुसैन। 72वां नंबर सवाल, नज़म बिजली का खंबा के अलावा नदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? नदा फाजली की नज़म हमारे निसाब में नज़म बहुत आसान थी, पहले है। 73वां नंबर सवाल है, सरापा रिजस जंग और शहादत किस सिन्फ के अज्जा हैं? जवाब मरसिया। सरापा रिजस जंग और शहादत मरसिया के अज्जा हैं। 74वां नंबर सवाल है, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? जवाब मक्ता। मक्ता में तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। 75वां नंबर सवाल है, मसहबी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब अमरोहा में। मसहबी की पैदाइश अमरोहा में हुई। 76वां नंबर सवाल है, मसनवी ज़हरे इश्क किसने लिखी है? जवाब मसनवी ज़हरे इश्क शौक लखनवी ने लिखी है। 77वां नंबर सवाल है, दरजैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तू वो सूरज है तेरी खाली जगह रह जाएंगी। इसके जवाब में होगा परछाइयाँ। तू वो सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। 78वां नंबर सवाल है, शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया है? जवाब यमुना। गीत में जमुना नदी का तस्करा है। 79वां नंबर सवाल है, जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? 1935 में। जफर गोरखपुरी की पैदाइश 1935 में हुई। उसके बाद है 80वां नंबर सवाल है, 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है? जवाब भाग जाना। 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। 81वां नंबर सवाल है, ममदूदा झैल के किसी लफ्ज में है? महदूदा लिख दिया, गलत लिखा हुआ है। ममदूदा झैल के किस लफ्ज में है? जवाब ऑप्शन है जीम आम। आम में महमूदा यानी मद वाला कौन है? तो वही है आम। 82वां नंबर सवाल है, ख्वार का हम सौत लफ्ज क्या होगा? इसका जवाब है बेखार। 83वां नंबर सवाल है, दरजैल में साबका की निशानदेही कीजिए। जवाब ला हासिल अलिफ। 83वां नंबर सवाल का जवाब होगा अलिफ ला हासिल। उसके बाद है 84वां नंबर सवाल है, मैं कौन से गा है? वाहिद मुतकल्लिम। मैं वाहिद मुतकल्लिम है। 85वां नंबर सवाल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये जुमला कैसा है? इस्तिफामिया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये जुमला इस्तिफामिया की मिसाल है।
86वां नंबर सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मोगनी किस जबान के उस्ताद थे? जवाब अंग्रेजी के। डॉक्टर अब्दुल मोगनी अंग्रेजी के उस्ताद थे। भीमराव के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। भीमराव के वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। 88वां नंबर सवाल, शामिल निसाब मकतूब शाहबाज ने किसके नाम लिखा है? जवाब बेटी के नाम। शाहबाज ने अपने बेटी के नाम मकतूब लिखा है। 89 नंबर का सवाल है, मेहदी अफादी का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब है शयूख। मेहदी अफादी का ताल्लुक शयूख खानदान से था। नाविल एक चादर मैली सी के नाविल निगार कौन है? 90वां नंबर सवाल है, एक चादर मैली सी के नाविल निगार राजेंद्र सिंह बेदी। 51वां नंबर सवाल है, दर्जैल में इसमें आला की निशानदेही की है। जवाब झाड़ू। झाड़ू इसमें आला है। 52वां नंबर सवाल है, मुहावरा गर्म होना का मतलब है बहुत गुस्सा होना। गर्म होना का मतलब है बहुत गुस्सा होना। 93 नंबर सवाल है, इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? जवाब दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में है। 94 नंबर सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जवाब खरा डिनर। खरा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़म है। 95 नंबर सवाल है, नसीम की पैदाइश कब हुई? जवाब 1811 में। नसीम की पैदाइश 1811 में हुई। 56वां नंबर सवाल है, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? जवाब पटना। हसन नईम का ताल्लुक पटना शहर से है। 57वां नंबर सवाल है, परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन दरभंगा है। 58वां नंबर सवाल है, इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? जवाब ज़मीर। जो इस्म के बदले में इस्तेमाल होता है, जो इसके बदले में लफ्ज आता है, उसे ज़मीर कहते हैं। 99 नंबर सवाल है, तुम क्या करते? खाली जगह जुमला को मुकम्मल करें। तुम क्या करते हो से जुमला मुकम्मल हो जाएगा। 100वां नंबर सवाल है, कायनात की तख्लीक किसने की? जवाब अल्लाह ताला ने। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की।